آج کے دن ہمارا دل نہایت دکھی، غمگین اور افسردہ ہے کہ آرچ ڈائسیس لاہور کے انتہائی عاجز، حلیم اور رحم سے بھرے کاہن فادر مشتاق پیارا خداوند میں سو گئے ہیں۔ میں فادر مشتاق کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، کیونکہ کہنانہ تربیت کے دوران ہم اکٹھے رہے اور فادر مشتاق پیارا مجھ سے سیمنری میں 1 سال جونیئر تھے۔ نہ صرف سیمنری میں بلکہ کاہن بننے کے بعد بھی وہ ہمیشہ عاجز، حلیم اور خدا کے وفادار اور اپنی بلاہٹ میں ہمیشہ وفادار اور مضبوط رہے۔ آج ہم خدا کے حضور فادر مشتاق پیارا کی روح کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ خداوند ان کی روح کو اپنے ایوانوں میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، ان کی تمام تر بشری کمزوریوں، غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرے اور ان کو ہمیشہ کی زندگی کا رام بخشے۔ ہم دعا بھی مانگتے ہیں آرچ ڈائسیس کی تمام کہنانہ برادری کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں فادر مشتاق کے خاندان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے کہ جو اس وقت دکھ اور افسردگی کی حالت میں ہیں، کہ خداوند فادر مشتاق پیارے کے سارے خاندان کو اور تمام مومنین کو اور آرچ ڈائسیس لاہور کی کہنانہ برادری کو صبر جمیل عطا کرے، تاکہ ہم سب حضرت ایوب کی طرح کہہ سکیں کہ اسی نے دیا، اسی نے لیا اور اسی کا نام مبارک ہو۔ آمین۔ نعرہ حمد۔ آئے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور وہ زندگی بھی ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ آج ہم مقدس متی کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی آیات 21 اور 22 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم کاملیت کے بارے میں سنیں گے۔ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر بہت غمگین ہوا اور چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ یہ اس بات چیت کا نتیجہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ایک امیر شخص کے ساتھ کی تھی، جو اس کے پاس آیا اور پوچھا، آئے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ابدی زندگی پاؤں؟ یسوع نے اسے حکموں پر عمل کرنے کو کہا۔ نوجوان نے کہا کہ وہ اپنی جوانی سے ایسا کر رہا ہے اور جاننا چاہتا تھا کہ وہ اور کیا کر سکتا تھا۔ تو پھر یسوع نے اس کے سوال کا جواب دیا، لیکن یسوع کا یہ جواب ایسا تھا کہ نوجوان کے لیے اسے قبول کرنا مشکل تھا۔ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم کامل بننا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یسوع نے اس طرح کے ایک مقصد کے لیے ایک اعلیٰ پیمانہ مقرر کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسیح کے بوجھ سے پیروکار صرف ٹھیک ہونے کی حد تک ٹھیک ہے،
दूसरे अल्फाज में ऐसा महसूस होता है कि एक शख्स मिलना नायाब है जो पूरे दिल से कामलियत को हासिल करना चाहता हो। बहुत से लोगों के इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को उस काम के लिए पूरी तरह से वक्फ कर देते हैं जिसके लिए हम सबको बुलाया गया है। ये नोट करना दिलचस्प है कि उस अमीर शख्स के लिए खुदावंद यीशु मसीह के इब्तदाई रद्द अमल ने अब्दी जिंदगी में दाखिल होने के तकाजों की वजाहत की, यानी बहिश्त हासिल करने के लिए सबसे आसान तरीका। सीधे अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर हम अहकाम पर अमल करते हुए गुनाहों से दूर रहें तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। यकीनन इससे यह भी अंदाजा होता है कि हमारे पास ईमान का तोहफा है और इस तरह हम नजात के तोहफे के लिए खुले हैं। तो क्या हम इसी से मुतमिन हैं? क्या हम बहिश्त में जाने के लिए कम से कम काम करने से मुतमिन हैं? कामलियत को हासिल करने का ख्याल हमारी सोच से बाहर दिखाई दे सकता है। अक्सर हम सोच सकते हैं हम सिर्फ इंसान हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पर हमें खुदा ने बुलाया है और हमें दावत दी गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा पाकीज़गी के हसूल के लिए काम करें। अगरचे हम में कमजोरियां होंगी, इसके बावजूद जितना हो सके हमें कामिल और पाकीज़ा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगरचे उस नौजवान को यह दावत दी गई है कि जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे, लेकिन यह एक ऐसी शर्त नहीं है जो खुदावंद हर एक पर रखता है, लेकिन वो बास को लफ्जी तौर पर ऐसा करने के लिए बुलाता है। लेकिन बाकी सब के लिए दावत अब भी बाकी है, लेकिन लफ्जी मानी के बजाय रूहानी मानों में। ये रूह की बातनी गुर्बत की रूहानी दावत है। हम में से हर एक को बातनी तौर पर इस दुनिया की चीजों से मुकम्मल तौर पर अलग होने के लिए कहा जाता है। हालांकि हम अपने मालो दौलत को अपने पास रखते हैं, हमारे पास हमारी वाहिद मलकियत खुदा की मोहब्बत और उसकी मर्जी की खिदमत होनी चाहिए। रूहानी लातलकी की इस गहराई का मतलब यह है कि खुदा और उसकी मुकद्दस मर्जी वही है जो हम जिंदगी में चाहते हैं, और अगर वो हमें कभी लफ्जी तौर पर सब कुछ तर्क करने के लिए बुलाए तो हम उसे बगैर किसी हिचकिचाहट के पूरा करेंगे। और अगरचे ये इंतहाई मुश्किल महसूस हो सकता है, हकीकत में ये वही है जो हमें सबसे ज्यादा फायदा देगा। ये मुकम्मल तौर पर इंसान बनने और मुकम्मल तौर पर वो शख्स बनने का वाहिद तरीका है जिसके लिए हम तख्लीक किए गए थे। और आखिरी इनाम ना सिर्फ बहिश्त का हसूल है, बल्कि बहिश्त में जलाल की एक नाकाबिल फहम बरकत है। हम इस दुनिया में रहते हुए जितनी ज्यादा मुकद्दस और पाकीज़ा बनेंगे, आसमान में हमारा अब्दी अजर उतना ही ज्यादा होगा। उस खजाने को जमा करने के लिए जो हमारे पास हमेशा के लिए रहेगा, उसको हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। आज खुदा की तरफ से कामलियत को हासिल करने के लिए दी गई आला दावत पर गौर करें। अपने आप से वो मुखलिसाना अंदाज में पूछें कि क्या हम ठीक हैं या नहीं, या हम बहुत कुछ चाहते हैं। क्या हम बहिश्त में सबसे बड़ी दौलत चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी अब्दियत ऐसी हो जिसमें हम
जो रूहानी खजाने अब जमा करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहें। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से इस आला दावत को कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। उस अमीर नौजवान के लिए उसकी दावत को अपने दिलों में गूंजने दें, उस दावत को हां कहें और उस हां के लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। हम दुआ मांगे। हमारे प्यारे खुदावंद, आपने अमीर नौजवान को कामलियत हासिल करने की दावत दी। आप हमें और अपने तमाम बच्चों को भी ये मुकद्दस और आला बुलावे की दावत देते हैं। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसके जरिए हमें उन तमाम चीजों से अलग होने की जरूरत है जो इस आला बुलावट में रुकावट का सबब है, ताकि हम आप और आपकी मुकद्दस मर्जी को अपनी जिंदगियों का मरकजी और वाहिद मकसद बना सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।